Hello everyone, welcome to new video. Today we are going to discuss about new chapter, that is refraction of light. What is meant by refraction, beta? In previous standard, in 9th standard, we have a chapter that is reflection of light. As we have previously discussed, reflection always occur in opaque media. But refraction occur in transparent and translucent media. Translucent medium. Okay, beta. Now see this. What is meant by refraction? When we have seen transparent, translucent, opaque previously in detail also. If you need this, so go check the playlist. You will get the video. What is meant by transparent, beta? Transparent. Transparent means what? The medium which allow light to pass through it. Translucent, beta, which partially allow light to pass. And opaque means no light pass. Okay. What are the example of transparent medium? Transparent medium के example क्या है? तो जैसे लाइट है, लाइट किस में से पास होता है? देखो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एयर है, ग्लास, वाटर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट के. ट्रांसलूसेंट में प्लास्टिक, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा. एंड ओपेक में ब्रिक्स, वुड, etc. ओके, सो ये सारे कंबाइंड फेनोमेनन हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस इट इन प्रीवियस क्लासेस एज वेल. But in this class, when we started reflection of light, so first of all, in our mind, the thought or the point will be clear. What is meant by reflection? Reflection is nothing but the property of light through which it can passes from one medium to another medium or not. If it passes from one medium to another medium, which means refraction occurs, and if does not passes from one medium to another medium, which means there is a reflection. Suppose we have consider one object here. वीडियो पीछे लेके ये पूरा लिख लीजिए बेटा. सपोज वन ग्लास piece you have taken, another brick you have taken, or the same size material as a wood you have taken. When you have taken the light source over here, you will find it out light travel in all possible direction as per the theory of electromagnetic induction. What is meant by electromagnetic induction? Today's question is that what is meant by electromagnetic radiation? Okay, you have to write down electromagnetic radiation definition in the comment box, which is given below. See beta, the piece or the object which made by glass can allow light to pass through it, which means from one medium to another. Here one medium, another medium. But if light fall on the wooden plank, it does not passes through the other side, it turn back with the same path in the same media. So from basis of that only we can consider the definition of refraction of light is when light pass from one transparent medium to another. ट्रांसपेरेंट मीडियम. जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन. ओके, रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम ओनली. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव क्लासिफाइड मीडियम्स इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज डेंसर मीडियम and second one is rare medium.
नाउ व्हाट इज मीन बाय डेंसर मीडियम बेटा? डेंसर बोले तो क्या, रेयरर बोले तो क्या? हम लोग क्लास में बोलते हैं ना, रेयरली सीन इन द क्लास, दिस थिंग इज रेयरली सीन इन द home or house, these things are rarely seen by us. So rarely means what? There is a low chances, there is a lesser chances to appear this thing. Same thing we are consider for light as well. What is meant by rarer medium beta? The medium in which the intermolecular force of attraction between two molecules is lesser. Here we have a less intermolecular force of attraction. Here we have high intermolecular force of attraction. सपोज आपके पास ना ये एयर है, एयर, और दूसरा है ना एक ग्लास का टुकड़ा है, इनमें से कौन रेयर और कौन डेंसर है बताओ बेटा? ऑफ कोर्स एयर जो है वो क्या है आपका? रेयरर मीडियम है, और जो ग्लास है वो आपका डेंसर मीडियम है। करेक्ट। नेक्स्ट, आपने इस ग्लास को कंपेयर किया इस वाटर के साथ में, तो इसमें अब रेयरर कौन है और डेंसर कौन है बेटा? तो आपको ये पता चल जाएगा ये रेयरर है ये डेंसर है। वैसे ही अगर आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया, ये वाटर को अगर आपने एयर के साथ कंपेयर किया, तो एयर तो रेयरर है, वाटर क्या बन जाएगा आपका? डेंसर बन जाएगा। इसका मतलब रेयरर और डेंसर ये जो मीडियम हम लोग बोल रहे हैं ना, ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इट इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन विच दोज हु आर हैविंग लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर टू बी एज अ रेयरर, and those who are having high intermolecular force of attraction are considered to be as a denser medium. For example, if air with respect to vacuum, if you take no vacuum, which one is rarer and which one is denser? Of course vacuum is rarer, air is denser. How? In vacuum there is no molecule, there is no intermolecular force of attraction. If there is no intermolecular force of attraction, which means there is no chances that the intermolecular force of attraction present over there, because of that only it becomes a rarer medium. हमारे अर्थ में लाइट जो आती है अर्थ के ऊपर, वो भी रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ही आती है। कैसे? देखिए, सन से लेके हमारे एटमॉस्फेयर तक कंसिडर करिए, ये सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। सन से जब लाइट ट्रैवल करती है ना बेटा, जब कभी भी लाइट सन से ट्रैवल करती है, तो यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। यहाँ पे क्या है? मीडियम है। लाइट यहाँ पे आपको एयर मिलेगा, कंबाइंड एयर, जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, नियॉन, नोबल गैसेस, ऑल द ओजोन लेयर, ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। फ्रॉम एटमॉस्फेयर इट चेंजेस इट्स पाथ, डाइवर्टेड इट्स पाथ। लाइट क्या करता है? अपना पाथ डाइवर्ट कर देता है, पाइवेट कर देता है। When the light pivoted or divert its path, at that time what we are consider here beta, when it diverts its path, that time due to change in the interaction, due to change in the path, we are clearly seen over here, due to change in the path, the light should be bent towards the person or goes away from the person. Means ये जो है light slightly क्या करेगा? Shift करेगा। Why so? Because of rare medium to denser medium. Okay. सो इसी प्रॉपर्टी को पकड़ के लाइट के ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए 3 रूल्स बनाए गए। हाउ मेनी रूल्स आर क्रिएटेड बेटा ओवर हियर? 3 रूल्स आर बिल्ड ओवर हियर। तो रूल फर्स्ट क्या है? पहला रूल आपको पता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। दोज हु आर हैविंग हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड डेंसर, दोज हु आर हैविंग लेस कॉल्ड रेयर। सपोज बेटा दिस इज द पीस ऑफ ग्लास, ये ग्लास का पीस है, ठीक है, ग्लास का कोई तो एक आपने टुकड़ा ले लिया, पीस लिया। द लाइट फॉल ऑन द पीस ऑफ ग्लास लाइक दिस, एंड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड, ये हमने रूल जब पढ़े थे ना, ये वाले, ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन सेम प्लेन ऑन सेम पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट साइड टू द नॉर्मल। नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन which is in between incident and reflected. Here also the same thing we have to apply over here. See this beta, when light travel from rare medium to denser medium, why so rare to denser? अगर आपने यहाँ पे ग्लास को देखा तो ग्लास क्या है? डेंसर है।
ये एयर है, एयर क्या है, रेयरर है, बिकॉज एयर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा, यहां पे ज्यादा होगा। When light travel from rare medium to denser medium, अब यहां पे ये टच किया लाइट ने, इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या होगा आपका, एक नॉर्मल होगा, बराबर। When light travel from rare medium to denser medium, it bend towards the normal. लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Here angle of incidence, in this case angle of incidence is greater than angle of refraction. Okay beta, how the statement build up for this rule, that is light travel from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. It bend towards the normal. Now rule second. अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट रूल. Now we'll go for rule second. मैं यहाँ पे इसका ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ. Angle of incidence is greater than angle of refraction. Now here it becomes rule second. What is the rule second बेटा? See this. यहां पे कैसे था, लाइट रेयर में से डेंसर में जा रही थी तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा था, नॉर्मल की साइड में बेंड हो रहा था. व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, मतलब अगर लाइट डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा बेटा, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल. देखो रेयर में से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर में से रेयर में जाएगा तो गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, which means it, if it is like this then it goes like this. Okay, so we can clearly see over here. Wait a minute beta. When light travel from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal. यहाँ पे का एंगल रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंस से कैसा होता है, ग्रेटर होता है, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ स्टेटमेंट कैसा बनेगा, यहाँ पे लाइट ट्रैवल फ्रॉम, रेयर की जगह पे डेंसर लगाने का, light travel from denser medium to rare medium, it bends towards the normal. Okay, sorry, bends or it goes away from normal. Okay children, this is the rule second, and the final rule is rule 3. See this beta, this is what, a medium glass. Light travel from rare to denser, denser to rare, but perpendicular to the surface. यहां पे क्रॉस में आ रहा था लाइट, बराबर, यहां पे परपेंडिकुलर जा रहा है, एकदम स्ट्रेट. किसको परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर जा रहा है. So it trace the same path, वो सेम पाथ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा. When light travel along the normal, it passes through the same path. ये सेम पाथ में से क्या होगा बेटा, पास हो जाएगा, मतलब ये अपना पाथ डाइवर्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट डाइवर्ट इट्स पाथ. सपोज करिए जैसे पानी में अगर आप ऐसा उल्टा होके भोसका भरते हो, मतलब ऐसा भोसका भरते हो, तो क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी पे ज्यादा मार लगेगा, बराबर ना. और जब आप ऐसे सीधे गिरोगे पानी के अंदर से जुप करके, ऐसा मतलब सीधा जब अंदर जाओगे, ऊपर भी आओगे तैर के, वैसे वाला ऊपर नहीं, इसे कुछ भी नहीं बोलते. देखो जोक सपाट, जब पानी में हम लोग सीधा अंदर जाते हैं तो सीधा हम लोग ऊपर आते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है बेटा. व्हेन लाइट पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब सरफेस को परपेंडिकुलर लाइट पास होगा तो वो सेम पाथ से नीचे जाएगा तो सेम पाथ से ऊपर आएगा. ये क्रॉस में अगर जाएगा तो उसमें रूल लगेंगे कि अगर वो डेंसर से रेयर में जा रहे हैं. अब यहाँ पे सीधा एक ग्लास जो है डेंसर है, एयर जो है रेयर है, जो पिछला यही यहाँ पे रिपीट हुआ.
व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें और एक पॉइंट ये है बेटा कि क्या होता है मालूम है, अगर समझो ये लेजर लाइट, आप बचपन में खेलते हो ना लेजर लाइट, किसी के मुंह पे चमकाने वाला लाइट, ऐसे फशिप करके चमकाते हो ना, वो वाला लाइट, बड़े बुरे बच्चे हो लाइट चमकाते हैं। देखो ये लाइट जो है ना ये ऐसा पड़ रहा है, ठीक है, ये ऐसा पड़ने के बाद ना ये इस किसी तो भी पॉइंट के ऊपर पड़ रहा है, पी पॉइंट के ऊपर। आपने क्या किया, इसके बीच में ना एक ब्लॉक लगा दिया। ब्लॉक लगाने से क्या होगा, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर ना। तो अगर आपने ऐसा ब्लॉक को इंसर्ट कर दिया लाइट के पाथ में, तो जो पी पॉइंट पे अपीयर होना चाहिए था, अभी वो लाइट क्यू पॉइंट पे अपीयर हो रहा। मतलब व्हेन रिफ्रैक्शन ऑकर्स आफ्टर रिफ्रैक्शन इंसिडेंट इमर्स्ड रे बोले तो क्या, जो शुरुआत में जा रही थी और जो बाद में गई, वो दोनों रेज एक दूसरे को क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। दैट बोथ टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये बस इतना याद रखिए, ये आपको सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपको याद रखना है इसको, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ये सबसे पहला वाला रूल था, रूल सेकंड था, रूल थर्ड था। मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर स्क्रीनशॉट नोट डाउन भी कर लीजिए नोटबुक में। याद रखिए ये पेंसिल से निकालना है, ये पूरा, ये पेन से भरना है और ये भी पेन से भरना है, ठीक है। ये पेंसिल, ये पूरा, ठीक है। I hope you understand this phenomenon. Regarding to this phenomenon, if you have any doubt in your mind, so don't hesitate to ask in the comment box which is given below. लिख के हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वो है स्नेल्स लॉ, उसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। बहुत ही प्यारा साइंटिस्ट था, वाला साइंटिस्ट, ठीक है। काम धंधा तो कुछ था नहीं तो लॉ बना दिया, स्नेल्स लॉ, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको दिखाते हैं म्यू से। न्यू नहीं रे, म्यू तेरे क्लास में वाला न्यू बच्चा नहीं, म्यू म्यू इज इक्वल टू, अब यहां पे पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा ना, स्नेल्स लॉ, या फिर स्नेल्स लॉ क्या बोलता है ये स्नेल्स लॉ? जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा है, देखो पिछले इसमें देखा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल हैव इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट वी हैव स्टडीड नो। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि म्यू, जो जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं ना, वो है, देखो कि वो क्या बोलता है कि दैट इज रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल टू रिफ्लेक्टेड और reflected angle are constant. Suppose एंगल इंसिडेंट कितना है बेटा 90, तो एंगल रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 90 होगा। स्नेल्स लॉ बोलता है कि म्यू ऑफ साइन आई, साइन आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। हाउ आई लेट यू नो, हियर साइन आई इज इक्वल टू 90, sin r is equal to 90, 90 divided by 90 is equal to 1. Next we'll suppose here it is 45, here it is 45. So mu is equal to 45 divided by 45, again equal to 1. Mu is equal to 180 divided by 180, again equal to 1. Mu is equal to 120 divided by 120, again equal to 1. So all the time if you see this, so this 1 become constant, स्नेल्स ने क्या बोल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका अगर रेशियो लिया इन एंगल्स, ऐसा होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट ये है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्नेल्स लॉ समझ में आ गया आपको? स्नेल्स लॉ को ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको भी ना म्यू से दिखाया जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। हाउ आई लेट यू नो, सी दिस बेटा, ये है ना एक ब्लॉक है, लाइट ये वेलोसिटी का फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी v1,
सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी v2। तो ये वाला होता है आपका म्यू, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको निकालते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं उसको। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट in first medium to velocity of light in second medium। कैसे लिखते हैं इसको बेटा? म्यू 1:2 is equal to v1 divided by v2, where v1 is the velocity of light in first media, v2 is the velocity of light in second media। So this is the relationship between refractive index, और इसी को ही refractive index बोलते हैं। कुछ refractive index constant होते हैं, अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये सारे refractive index आपको लिख के रखने हैं, नोट डाउन करके रखने हैं। This is the refractive index of light, sum of medium जैसे water, diamond, copper, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, जिंक, फास्फोरस, गर्मीनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन, क्रिप्टॉन, ज़नानियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेवेनियम, पैलेडियम। इतना सिर्फ नाम लिया है नहीं आपको, जितने हैं उतने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वही आपने मेंशन करने हैं, वही आपने लर्न करने हैं। ठीक है बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस phenomenon. If you understand this phenomenon very well, so don't forget to like, share and subscribe the channel. Why so? Because soon I am going to upload the video of 11th standard. To get the notification for that only, you'll have to subscribe the channel. Thanks for the watching. Thank you.